अरे अब चालू, दोबारा करो। अच्छा। भारत माता की जय, भारत माता की जय मातरम, मातरम। Only 100 meter. I can see the finish line. Yes, जोश तो बन रही है। हाँ, come on. हाँ। जय श्री राम। तो कल सुबह मॉर्निंग 1 फरवरी को इंडियन नेवी हाफ मैराथन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के लिए किट एकदम रेडी है। सुबह मॉर्निंग अराउंड 3:30 आई विल मूव फ्रॉम माय होम। सो ये सब प्रिपरेशन करना होता है भाई, उसके बाद में कुछ दौड़ पाते हैं बस। जय राम, सुबह की राम राम सभी जनों को। और देखिए अभी मैं निकल चुका हूँ स्टेडियम के लिए और बूंदें किन किन चालू हो गई है। अब पता नहीं, भगवान जाने ये बंद होंगी नहीं होंगी। And we also have Admiral Dinesh K. Tripathi ji, who is the Chief of the Naval Staff. जय श्री राम। सो भाई चालू हो चुकी है मैराथन। अभी थोड़ा सा हल्की हल्की बारिश भी पड़ रही है, लेकिन ये रनर मारने वाले मन से नहीं है, ये दौड़ते रहेंगे। बल्ले बल्ले। 10 किलोमीटर 58 मिनट, सबसे फास्टेस्ट आज तक का मेरा अपना। दस किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है 58 मिनट में। ये मेरा सबसे फास्टेस्ट 10 किलोमीटर क्लोजर है। सब अच्छा है, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। तो अभी मोस्टली 3 किलोमीटर कंप्लीट होने वाले हैं। बस हम लोग इंडिया गेट से थैंक यू। इससे थोड़ी तो एनर्जी आएगी। अभी 15 किलोमीटर 6 का पेस चल रहा है, अच्छा चल रहा है और टाइम से अच्छा है। और ये देखो इंडिया गेट। अभी परेड हुई थी तो उसके चलते देखो क्या सजा हुआ है। सैल्यूट है हमारे जवानों को। मैं एडिट कर लूँगा।
हो गया अब तो। ग्रेट गोइंग, गुड गोइंग, बहुत अच्छे। भागते रहो मिल्खा, भाग मिल्खा भाग। हेलो ए पाजी ले लिया। ये 10 किलोमीटर वाले यू टर्न लेके जा रहे हैं। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। Breathe out 3 steps and breathe in 2 steps. It will regulate your heartbeat. Come on. Aim for India. थैंक यू थैंक यू। ट्वेंटी किलोमीटर completed. Only 1 kilometer last. Last 2 minutes है। Please hold the track, come fast. Come on, come on. बस 400 मीटर बाकी और हाँ जय श्री राम। फिनिश। जय श्री राम। इंडियन नेवी मैराथन का हाफ मैराथन का सबसे बेस्ट टाइमिंग रहा है। जय श्री राम। ओके ओके दोबारा से स्टार्ट कर ले। तो जब घर से चला था सुबह 3:30 में, तो घर पे कुछ काम था, संडे है, बीवी बोले वो काम है, मैंने बोला चिंता ना कर 2 घंटे में मार के आ जाऊँगा। तो कॉन्फिडेंस अब बिल्डअप हो जाता है। 21 किलोमीटर में 2 घंटे। जय
दूसरी राउंड फिर के पास से हो गया है, स्टेमिना बचा हुआ है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान। M. Robbie Mithai, Petty Officer Log SC, for the best physique. He was the Miss Universe, Mr. Asia and Mr. India. Surjeet, Master Chief Petty Officer, Class 2 in Kabaddi. He's made his name in the Asian Games, Commonwealth gold medalist and nominated for Arjuna awardee this year. Jugraj Singh, Master Chief Petty Officer Comtel, Class 2 in hockey. Srijesh helped India win back-to-back Olympic bronze medals at Tokyo 2020, Paris 2024, breaking decades-old droughts and reviving India's hockey pride. Beyond the Olympics, he's a multiple Asian Games gold medalist, Commonwealth Games silver medalist, and a crucial force in India's many Asian Championship trophy victories. I think we have saved the best for the last. Padma Bhushan, Miss Saina Nehwal. Some athletes win medals. Saina Nehwal won a place in history, ladies and gentlemen. She became the first Indian badminton player to win an Olympic medal with a bronze at London in 2012 and then climbed to the pinnacle as world #1 in women's singles, a first for India. Her journey is studded with podium finishes at the World Championships, Commonwealth Games, Asian Games, and has been awarded with nation's highest sporting awards, Arjuna Award, Rajiv Gandhi Khel Ratna, Padma Shri and Padma Bhushan. Saina, you just didn't play badminton. You changed the way India looks at sports, inspiring a generation to pick up the racket and believe the world stage is ours to conquer. Thank you very much. Guys and girls, big round of applause. The biggest ever. Phone नीचे रखो और तालियां बजाओ. Fantastic. Rizwan Ali, bib number 13959. Please come near the stage. Rizwan Ali, bib number 13959. Discipline mean to you? Again, good morning everyone, and I think discipline is playing for the nation for almost 25 years and sacrificing the things you love the most, and bachpan se at the age of 9 I started playing and अभी मैं 35 की होने वाली हूँ. मुझे लगता है कि ना मैंने कभी टॉयज के साथ खेला, ना कभी फ्रेंड्स के साथ इतना खेला. फर्स्ट टाइम थिएटर भी मैं गई जब मैं 20-21 ईयर्स की थी, और इतनी सारी चीज़ें जो लाइफ में मिस कर दी जस्ट बिकॉज मुझे कंट्री के लिए मेडल लेके आना था एंड आई वांटेड टू अचीव मोर मेडल्स. और जब अपना झंडा ऊपर जाता है, आई थिंक उससे बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं. एवरी डे इवन आफ्टर फीलिंग दैट कि कभी कभी हार जीत कुछ भी हो, अच्छी ट्रेनिंग हो, बुरी ट्रेनिंग हो, लेकिन एवरी डे शो फॉर द ट्रेनिंग, दैट इज इम्पॉर्टेंट. अगर आपको चैम्पियन बनना है तो आपको इवन ऑन संडेज ट्रेनिंग करनी है, ये मैंने सीखा था. लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल प्लेयर बनना है तो वो तो आप पे डिपेंड करता है आप किस लेवल का सोचते हो. मेरी सोच थी कि मुझे कंट्री के लिए कुछ ऐसी चीज़ करनी है
जहाँ पे कोई मेरा रोल मॉडल नहीं था, लेकिन आई ट्राइड एंड ट्राइड। चाइना, कोरिया, जापान बैडमिंटन में छाए हुए रहते हैं, अभी तक भी छा रहे हैं, लेकिन उनको हराना वो टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था। मेरी मम्मी ने कभी गिव अप नहीं किया, मैंने कभी गिव अप नहीं किया, एंड आई एम सीइंग दैट आज हमारे कंट्री में इतना डिफरेंस आ गया है, क्योंकि हम इतने सारे मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतना बिलीव आ गया है कि हमें फिटनेस रहना है, डिसिप्लिन आ गया है। बट आई जस्ट होप एंड फील इन द फ्यूचर वी गेट मेनी मोर ओलंपिक चैंपियंस, और वो जब ही होगा जब हम और स्ट्रॉन्ग माइंड रखेंगे और थोड़ा मोबाइल से जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता, थोड़ा मोबाइल से दूर रहेंगे, थोड़ा सा। वरना टाइम पास करो, एंटरटेनमेंट रखो, जरूरी है, बट जब तक आपका काम पूरा नहीं होता, जब तक आप अपना जो मेन गोल है उस पर अचीव नहीं कर लेते, आई थिंक थोड़े सी जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको साइड में रखो, एंड लेट अस सी एंड होप एंड प्रे कि जो फ्यूचर में अगर ओलंपिक्स इंडिया में हो, वहाँ पे इंडिया वाले बहुत सारे मेडल जीत के लेके आए। थैंक यू। हो गई थी 2006-7 में आईफोन ये सब आए थे, तो आई थिंक उससे पहले मैंने लकीली अपना गोल सेट कर लिया था और उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई। लेकिन हाँ, आज की जनरेशन में आई थिंक प्लस पॉइंट्स तो है काफ़ी हद तक सोशल मीडिया के, कि आपको काफ़ी हद तक लोग काफ़ी अच्छी चीज़ें समझा रहे हैं, आप काफ़ी कुछ सीखने को उसमें मिलता है। लेकिन मुझे लगता है ना, जो थोड़ी सी चीज़ें उसमें है वो थोड़ी फेक भी लगती हैं। सब लोग दुनिया में इतने खुश नहीं हैं, सब लोग स्ट्रेस्ड आउट है। मुझे लगता है पूरी दुनिया स्ट्रेस्ड आउट है। पहले तो हम सबको एज प्लेयर्स हमको सिखाया जाता है कि मेंटल ट्रेनर्स रखना है। मेंटल ट्रेनर्स अभी आ गए हैं और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लेयर का क्या होता है, कभी कभी आप एक ही प्लेयर से बारी बारी हारते रहते हो, आफ्टर अचीविंग सो मच ऑल्सो, तो उनको कैसे हराना है, फिर ट्रेनिंग में और कैसे इम्प्रूवमेंट होती है। तो कभी आप अपने पेरेंट्स को या अपने कोचेस को या टीचर्स को नहीं बोल सकते, तो मेंटल ट्रेनर से डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं, आपको अपने पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करना है, तो पहले तो अपने माइंड को शांत करना है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन आप क्यों करते हैं, क्यों फ़ोन पे रहते हैं? क्योंकि हम एक मिनट भी शांत नहीं बैठ सकते हैं। और अपनी पिछली जनरेशन को अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी पापा, मैं उनको कभी फ़ोन पे देखती नहीं हूँ, बिकॉज उनका जनरेशन और लाइफस्टाइल ऐसा था। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप लिमिट करके थोड़ा टाइम और अपना जैसे ग्राउंड पे बिताइए, या ग्राउंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ बात करने चले जाइए, इंस्टेड ऑफ फ़ोन पकड़ के मैसेज करने के लिए। और डिसिप्लिन कैसे आएगा? जब अपने आप को आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। कोई और नहीं बताएगा आपको, आपका पेरेंट्स साथ नहीं देंगे, आपके भाई बहन साथ नहीं देंगे। सो दोस्तों, अभी फिनिशिंग हो गया है मेरा इंडियन नेवी मैराथन का। सो आई एम गोइंग टू बैक माई होम। सो लेकिन एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि जो रनर होता है, रनर की जो दुविधा होती है, परेशानी होती है, पेन होता है, उसको केवल रनर अंडरस्टैंड कर सकता है, बाकी कोई नहीं। रनर के लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं होता है। घर वाले हैं वो भी रनर्स को बस डांट के अलावा कुछ नहीं देते हैं, कोई अप्रिसिएशन नहीं देता है। और उसके बाद में पैसे तो खर्च होती हैं रनिंग में, नो डाउट। और एक हॉकर्स जो होते हैं उसमें और रनर में कोई डिफरेंस नहीं होता। वो भी सुबह सुबह बेचारे 4 साढ़े 4 बजे अखबार इकट्ठा करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेके चलते हैं, और उसी टाइम पे रनर भी अकेला सड़क पे दौड़ता रहता है। सो देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन रनर एंड द हॉकर्स। सेकंड थिंग, घर वाले, मेरे घर वालों ने तो भाई बोल दिया है कि ये लास्ट है तेरा। मैं भी हाथ जोड़ के बोल दिया मेरा लास्ट ही है, क्योंकि अगर कोई इंजरी वगैरह हो गई ना तो भाई इलाज नहीं करवाने वाले, तो इसलिए मैंने भी हाथ जोड़ के बोल दिया कि मेरा लास्ट ही है। सो अब क्या करें, मजबूर है आदमी, क्या कुछ नहीं कर सकते। तो ये रनर्स का पेन होता है, कोई अप्रिसिएशन बेचारे को मिलता नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जब मैंने, आज मेरी एज 45 है, जब मैंने 39 ईयर के एज में रनिंग स्टार्ट की थी, 21 किलोमीटर जब मैंने किया था, तो वो फर्स्ट मेरी मैराथन 3.5 घंटे में हुई थी फिनिशिंग। उसके बाद में नेक्स्ट मेरी हुई थी अराउंड 3 आवर्स। उसके बाद में 2 घंटे 59 मिनट। उसके बाद में मेरी अगली हुई थी 2 घंटे 50 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। उसके बाद में 2 घंटे 20 मिनट। उसके बाद में 2 घंटे 17 मिनट। और लास्ट मेरा हुआ था 2 घंटे 8 मिनट। और आज मेरा हुआ 2 घंटे 6 मिनट।
तो लेकिन एज भले ही बढ़ रही है मेरी, अभी अराउंड 45 ईयर्स अभी मेरी एज है, बट मेरा जो स्टेमिना 39 था उससे देखो कितना इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो ये आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, लेकिन भाई बस ये है घर वालों से बच के रहना है। रनिंग करना है तो चुप चुप करो, सुबह शाम करो, ज़्यादा घर वालों को दिखाओ मत, बताओ मत, अदरवाइज गालियाँ मिलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। बाकी ये है कि आपकी बॉडी का स्टेमिना अप होगा, आपका हेल्थ अच्छी रहेगी, बट यस वो ये घर वालों को डर रहता है फिर भी। चलो जय श्री राम, जिसको मर्जी है भाई करना है कर लो, ये बहुत गंदा शौक है। मैं तो कह रहा हूँ चक्कर में पड़ो ही मत, सुबह शाम अपना वही राधे राधे कर लो, 5-7 किलोमीटर दौड़ लिया करो जयराम जी की। मैराथन के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। चलिए हाय। सो दोस्तों अभी मैं मैराथन करके आया हूँ। एक्चुअली में डैडी चाचा या बड़े भाई होते तो डेफिनेटली मैं उनको ही पहना था, लेकिन वो नहीं है। तो मेरी वाइफ हैं जिन्होंने सुबह 3 बजे उठ के मेरी हेल्प की थी, तो वन टाइम के लिए मैं उनको इसके लिए पहनाता हूँ। है ना? सही है यार, साथ देने वाले को जरूर मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से ना। अब मैडम यहाँ लगा दो। और ये हमारे हो गए हैं, देखो मैं लगाता हूँ 12 ये 21, 10, 21 और 42 किलोमीटर ऑल आर हेयर।